बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि मौजूदा वक्त में एक वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और तमाम इदारे इस कोशिश में हैं कि अपने तलबा और तालिबात को तलीमी नुकसान से बचाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएँ। एक्सेल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सियालकोट भी बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर रहा है। तो इसी सिलसिले में आई एम अली नाजिम फ्राम एक्सेल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सियालकोट आपसे मुखातिब हूँ। My subject is English, and today the topic for which I am going to discuss is Introduction to English Language. Today we will discuss the characteristic of English language, the difference between human and animal language, and so many things related to this topic. So let's discuss all the things. Language is the easiest way of communication. There are so many ways of communication, and in which language is the easiest way of communication. The contents of this video which we will discuss are, first of all, language. What is language? Human language, animal language, words, languages, functions of language. So let's see. Language, if we talk about the definition of language, we can say it's a structured system of human communication. Secondly, we can say it's a method of human communication, either spoken or written, consisting of the use of vocabulary, means words. The second question which comes in our mind is, do animals have language? क्या जानवरों की भी कोई ज़ुबान होती है? क्या जानवर भी एक ज़ुबान के इस्तेमाल से कम्युनिकेट करते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? Animals do not have a true language like human beings. They do communicate with each other through sounds and gestures. जानवरों में इंसानों की तरह ये करेक्टरिस्टिक नहीं है कि वो लफ्ज़ों के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकें। वो कम्युनिकेट करते हैं बट थ्रू जेस्चर्स एंड साउंड्स। If we talk about the languages of the world, roughly speaking, we can say there are 6,500 spoken languages in the world today. Each language gives variety and diversity to speech. It makes the users versatile speaker. Means एक पर्सन को जितनी ज़्यादा ज़ुबानें आती हैं, वो जितनी ज़ुबानों पे अबूर रखता है, वो उतना ही ज़्यादा वर्सेटाइल स्पीकर होता है। If we talk about the languages in Pakistan, there are so many languages. In Pakistan, number 1 Punjabi, Sindhi, Saraiki, Pashto, Urdu, Balochi, Hindko, Brahvi and English.
The percentage of the speakers of each language is also shown in the diagram. You can see language can be spoken or written. लैंग्वेज स्पोकन भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है. If we talk about spoken language, there come two categories in that. Number one, listening, and number two, speaking. And if we talk about written language, there are also two types of that. Number one, reading, and number two, writing. यानी अगर कोई बोल रहा होगा तो उसको कोई सुनेगा भी, और दूसरी तरफ अगर कोई राइटिंग होगी, कोई तहरीर होगी, तो ज़रूर उसका कोई ना कोई रीडर भी होगा, उससे कोई पढ़ने वाला भी डेफिनेटली कोई होगा. वर्ड्स, वोकैबुलरी. वर्ड्स टेल अस व्हाट टू से. ग्रामर टेल्स अस हाउ टू से. मीन्स वर्ड्स हमें आइडियाज़ के एक्सप्रेशन का एक ज़रिया फराहम करते हैं, और ग्रामर हमें रूल्स देती है, रेगुलेशंस बताती है कि हमें कैसे अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करना है एक मीनिंगफुल तरीके से. व्हाट इज ग्रामर? If we talk about the definition of grammar, we can say it's a system of rules and principles for speaking and writing a language. यानी किसी भी जुबान को लिखने और बोलने के असूल और कवानीन का निज़ाम ग्रामर कहलाता है. The study of the internal structure of words, यानी ग्रामर की अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं कि इट्स द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स, जिसे हम लिंग्विस्टिक की टर्म में मॉर्फोलॉजी भी कह सकते हैं. द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ ग्रामर इज द यूज ऑफ वर्ड्स in the construction of phrases and sentences, which is called syntax in linguistic terminology. Difference between the word grammar, G-R-A-M-M-A-R, and the word grammar, G-R-A-M-M-E-R. The word grammar, AR, is referred to as the method and rules of the language. यानी जब हम GRAMMAR वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो ये एक किसी ज़ुबान की ग्रामर के बारे में हमें बताएगा, यानी ये रूल्स और मेथड बताएगा किसी ज़ुबान के हवाले से, जैसे इंग्लिश ग्रामर, उर्दू ग्रामर, अरबिक ग्रामर एट्सेट्रा. ही इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश ग्रामर, GRAMMER. जब हम वर्ड GRAMMER इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि इट्स अ प्रॉपर नाउन. इट विल बी यूज्ड एज अ नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन. तो ये एक नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, और वो भी स्पेसिफिक नाम. फॉर एग्जाम्पल, गुनिवर ग्रामर इज अ हाईली प्रोफेशनल आर्टिस्ट. मिस ग्रामर, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर कंस्पायरिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो हमें इन दोनों लफ्ज़ों के इस्तेमाल में एहतियात से काम लेना चाहिए. स्पेशली जब हम ग्रामर की बात करें तो हम इन दोनों वर्ड्स को
और मिक्सअप कर देते हैं, जो कि गलती का सबब बनता है। हमें ग्रामर करते वक्त GRAMMAR ग्रामर वाला वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रामर कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी ग्रामर का जो बेसिक टॉपिक है, इट कंसिस्ट ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। वी विल डिस्कस this topic in coming lectures. Hopefully you will keep in touch to have access to all these things. So for today that's enough. We'll discuss the coming lectures, parts of speech, tenses and basic grammar contents in sequence. Stay happy. Goodbye. Allah Hafiz. Thank you very much.